Hello and welcome to the very lovely show. Dance is a hidden language of the soul and the body. And our today's guest strongly believe in this because he's a dancer, choreographer, and movement guide. Not only that, he has also developed a pedagogy on expressive dance movement, emotion in motion. So let's welcome Vishal Telang. Yeah, he'll be joining soon. I think some जो भी लोग आज यहाँ हैं, we are going to have Vishal with us, and he is a dancer and choreographer. So let's welcome Vishal. आप सबको डांस बहुत पसंद होगा एंड आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा रिगार्डिंग डांस फॉर्म्स एंड contemporary dance, especially because he is specialized in contemporary. Yeah, he's there. Yeah, please join. Yes, he's there. Yeah, Yes, good lovely. evening. Good evening. Again, welcome to the very lovely show. It's Thank really you great so to much. have you here. Thank you so much, lovely. Thank you for inviting me for your lovely show. And I hope you'll have a lovely time. Yes, of course, of course. We will Yeah. definitely looking forward for a wonderful session. So, Vishal, as we were talking, like I was saying about you, that dance is a hidden language of Correct. soul and body. What is your hmm say on that? Uh, yes, dance is the hidden language of the soul and the body for sure. But I think dance also for me incorporates a lot of freedom, a lot of self-expression, a lot of an individual personality, and also I think a sense of liking towards one's body as well. I Right. think unless and until you would not be able to like your own body, you would not want to dance or you don't feel like dancing. So I think all of this in a way encompasses, you know, uh, dance for me in general. Right. So Yeah. Vishal Telang, even आपने बायोडेटा पे भी लिखा हुआ है, I'm not from Telangana. So आप कौन से सिटी से हैं? मेरी पैदाइश जो है वो बैंगलोर से हुई है. जी. आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बैंगलोर. देन Okay. आई मूव टू मुंबई. मुंबई में हम्म, मैंने बाद में अपनी पढ़ाई करी, एक्टिंग की पढ़ाई करी और वहाँ पर बहुत सारा काम किया. 8 साल रुका हम्म, मैं मुंबई में और उसके हम्म, बाद मैं वहां से न्यूयॉर्क चला गया 6 साल. हम्म. तो Okay. टेक्निकली बैंगलोर मेरा जो है वो what do you call that? My motherland or where I was born. You could say that. Okay. Yeah. So डांस का पैशन या डांस का कीड़ा आई शुड से Hmm. कब आपको काटा? Well, actually डांस का कीड़ा नहीं था वो ऋतिक रोशन था. ऋतिक रोशन ने बहुत काटा. Actually, I Okay. started dancing because as every millennial kid who was born around that time, uh, हाँ जी. हमको 2000 जब I think 2000 when his first movie released and all the boys and girls went to watch the movie. Uh, you हम्म, know, all the boys got inspired by the dancing and all the girls went crazy about this one Greek god. So हम्म. I think I started dancing from there. वहां से मुझे वो कीड़ा या जो भी है वो बोल सकते हैं वो लगा मुझे. राइट. आपने ऋतिक का नाम लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि डांस दो तरह के होते हैं. एक तो वो जिसको आप देख के बस आपका मुंह खुला रह जाए, लाइक ओ माय गॉड. और एक वो जिसको देख के आप डांस करना शुरू कर दें, करेक्ट. करेक्ट. सिंपल, और जिसको देख के आपको लगे अरे मैं भी कर सकता हूँ. करेक्ट. सो डू यू एब्सोल्युटली. बिलीव इन एनीबडी कैन डांस? यस. मैं इसके बारे में बहुत सोच रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग आजकल एनीबडी कैन डांस का जो टैगलाइन है वो लेके घूम रहे हैं. बट मुझे लगता है कि जब आप उस स्टेटमेंट को अपने हिसाब से देखोगे तो मुझे लगता है कि जब मैं बोलता हूँ कि एनीबडी कैन डांस तो मैं बोलता हूँ कि आप डांस कर सकते हो बट आपको मेरे पास आना पड़ेगा डांस सीखने के लिए और तब जाके आपको डांस करना आएगा. तो ये एक तरीके का पर्सपेक्टिव है.
बट मेरे जी। हिसाब से व्हेन आई से एनीबॉडी कैन डांस, I would not want somebody to come to me to learn my kind of dance, या जो मैं जैसा डांस करता हूँ वैसे मैं डांस नहीं करना चाहता। बट आप क्या डांस करते हो या आपकी बॉडी से कौन सी डांस निकल रही है, एक इंडिविजुअल डांस निकल रही है, आपका एक खुद का एक फ्रीडम निकल रहा है, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और उस वजह से मैं बोलूंगा कि एनीबॉडी कैन डांस, not that anybody can dance but you don't know dance right now but you come to me, I will teach you dance, not that kind of dance। राइट। बिकॉज नॉर्मली होता क्या है, जब भी हम डांस क्लासेस में जाते हैं या कुछ भी हम्म कहीं भी हम डांस सीखने जाते हैं, हम्म until unless it's a technical thing like कथक है, भरतनाट्यम है, जिसमें बहुत इट्स लाइक अ वर्कशिप। सो बेसिकली करेक्ट वो एक अलग चीज है। बट नॉर्मली आजकल जैसे कि पीपल वांट्स बॉलीवुड, करेक्ट मोर ऑफ वेस्टर्न। सो करेक्ट उसमें अब सिखाया किस तरह जाता है, 1 2 1 2 करके। अब होता क्या करेक्ट है कि इट्स स्ट्रक इन योर माइंड करेक्ट कि व्हाट इज नेक्स्ट। करेक्ट सो करेक्ट एज यू से कि आप उनके डांस के हिसाब से उनको सिखाते हो। सो हाँ जी। किस तरह से आप शुरुआत करते हो कि वन शुड नॉट तो स्ट्रक इन 1 2 1 2 रिदम? तो बेसिकली मैंने अपने क्लासेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलना ही बंद कर दिया। तो मैंने ओके। शुरुआत की, तो मैं किसी भी क्लास में अपने अभी से मैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलता हूँ, ना मैं अपने क्लासेस में जाकर मैं कोरियोग्राफी सिखाता हूँ, ना मैं किसी को एक बॉलीवुड गाने पे नाचने के लिए बोलता हूँ। मेरे हिसाब से जहां पर मैं हूँ, मैं ज्यादातर ये सोच रहा हूँ कि मैं इमोशंस और एक्सप्रेशंस के ऊपर काम कर रहा हूँ। अंदर राइट। का जो इमोशन है, अंदर का जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमने बहुत सारा जो डांस जो देखा है अभी फिलहाल वो स्किल बेस्ड है। मतलब जो आप हाथ पैर को you train yourself in a way where you're very well with moving your arms and body and etc. बट बहुत लोग जो है वो अंदर का जो काम है वो इमोशन या एक्सप्रेशन उस पे काम करना भूल जाते हैं। तो मैंने क्या किया, आउटसाइड टू इनसाइड जाने के बजाय मैंने इनसाइड टू आउटसाइड जाने की कोशिश करी कि आपके इमोशन और एक्सप्रेशन को जब मैं शेक करूंगा तो वहां से कौन सी मूवमेंट निकल के आती है जो आपका पर्सनल होगा, जो आपका बहुत ही इंडिविजुअल होगा और बहुत ही यूनिक होगा। तो आई एम मोर इंटरेस्टेड टू सी दैट डांस रादर देन जो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका हाथ ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, साइड में जाएगा साइड, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी फिलहाल, सो आई थिंक आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट एस्पेक्ट ऑफ डांस वेयर आई वुड वांट टू सी एन इंडिविजुअल डांस, a unique dance which an individual will come with their own body, you know। राइट। करेक्ट। या तो इनफैक्ट मैंने 1 2 3 मैंने 4 आपके 5 6 बोलना ही बंद कर दिया। that's really great, great. And you are into contemporary form of dancing. So what यस मैंने पढ़ा है exactly is कंटेंट। contemporary form? Because मैंने तो बहुत तरह के contemporary देखे हैं। So what is exactly according to you is contemporary? What is the definition of this contemporary form of dance? मेरे हिसाब से जो भी कंटेम्प्रेरी डांस का मतलब है, उसका मतलब ये है कि आप जब ट्रेडिशंस और कन्वेंशंस को तोड़ते हो वो कंटेम्प्रेरी हो जाता है। आप जो 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 रूल्स बने हुए हैं, जो रेगुलेशंस बने हुए हैं, अगर उसको आप तोड़ के आगे बढ़ते हो, इवॉल्व होते हो, कुछ नया सोचते हो, कुछ नया करते हो, उसको कंटेम्प्रेरी कहा जाता है। ना कि हम उसी चक्कर में फंसे रहे कि हाँ एक क्लासिकल फॉर्मेट में आपको बताया जाए कि हाँ मतलब वन वही हो गया ना वापस की 1 2 3 4 5 6 7 8, Right, मैं क्लास में right. आऊंगा और मैं मेरे हिसाब से अपना म्यूजिक चलाऊंगा। तो वो सब बहुत ही कन्वेंशनल ट्रेडिशनल थॉट है जो बहुत सालों से हो रहा है। बट कंटेम्प्रेरी का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि जब आप इन सब कन्वेंशंस और ट्रेडिशंस को जब आप तोड़ते हो और आगे बढ़ते हो, कुछ नया सोचते हो डांस के प्रति या डांस को लेकर, उसको मैं कंटेम्प्रेरी डांस मानूंगा, ना कि जो एक फ्रेमवर्क में क्लासिकल फ्रेमवर्क में आता है। क्लासिकल तो Right. क्लासिकल डांस है जिसमें सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से उसको फॉलो किया जाता है। Correct. बट कंटेम्प्रेरी में कोई ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता, आप उसको कभी भी जाके तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आगे लेके जा सकते हो। इट्स जस्ट अबाउट दैट। For me, that's Right. what is contemporary. Yeah. Right. So आप एक पेडागोजी भी डेवलप कर रहे हैं।
हाँ जी, which is expressive dance movement. So उसके बारे में एग्जैक्टली। कुछ बताइए. तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत ही एक तरीके से बोर हो गया हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 सिखा तो मैं 22 साल से सिखा रहा हूँ। Okay. हाँ जी। तो मैंने शुरुआत करी जब मैं 16 साल का था। So this was when it was 2000. So it's almost 22 years now. वहां से शुरुआत करी मैंने। और मैं एक समय के बाद, कोविड के बाद, एक बोरियत सी होने लगी कि मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे इसमें कोई मजा नहीं आ रहा है। तो और जब तक आपको मजा नहीं आता है तो आप किसी और को मजा करवा नहीं सकते और दे नहीं सकते हो। जी. तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में और सोचा कि मैं किस तरीके से डांस को देखता हूँ, हाउ डू आई सी डांस। एंड दैट्स व्हेन आई हैव टू रिवाइज माई सेल्फ, आई हैव टू रिविजिट कि मैं कहाँ से शुरुआत करी। और मैं जब अभी बोल रहा हूँ कि कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या है और कैसे सोचता हूँ, उसको मैं कैसे फ्रेम करूंगा। Correct. तब जाके जो मेरे सारे एक्सपीरियंसेस मैंने जो कलेक्ट किए हुए हैं, चाहे वो मेरे ड्रामा से हो या थिएटर से हो या फिजिकल थिएटर से हो या मार्शल आर्ट से हो या फिर जो बेसिक फ्री स्टाइल डांसिंग है, जब मैं इन सारे जो एक्सपीरियंसेस को एक तरीके से कलेक्ट करके उनको इंडिविजुअली प्रेजेंट करूंगा और एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट में उसको पेश करूंगा, ताकि एक इंसान मेरे डांस क्लास में आकर ये बोले कि मैंने डांस भी सीखा, मैं बहुत अच्छे लोगों से भी मिला, एक सोशल सोशल डांसिंग हुआ, ना कि परफॉर्मेंस डांसिंग जो स्टेज के लिए हो जाता है या फिर लोगों को दिखाने के लिए होता है। और एक तरीके का मतलब लोगों को अंदर से एक एहसास भी हुआ कि इमोशनली मुझे कुछ फील हुआ। मैंने बहुत एक्सप्रेस किया और मैंने जो दबा के रखा था अपने अंदर, मैंने मूवमेंट के साथ उसको निकाल दिया। तो निकाला. एक 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 कंप्लीट एक्सपीरियंस जो मैंने कलेक्ट किया है, उसको मैंने बॉक्स 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 पे डाला है। और जब जब Okay. मुझे वो मौका मिलता है, मैं देखता हूँ कि एक ग्रुप कैसे उसको इंटरेक्ट करता है या रिएक्ट करता है, और उस हिसाब से मैं उसको चलाता हूँ। इट इज मोस्टली गाइडेड सीरीज। गाइडेड मतलब मैं कहानी के तहत डांस क्लास करता हूँ, ना कि 1 2 3 4 5 6 7 के तहत। Okay. That's really great. So थैंक यू। जैसे कि आपने बताया कि आप एक तरीका आपने अपनाया है. So अगर जैसे कोई स्टूडेंट आपके यहाँ आता है, नया स्टूडेंट आता है, so किस तरह से आप शुरुआत करते हैं उनको सिखाने की? Like, do you see his dance या कोई भी म्यूजिक लगा दिया, या किस तरह से कि किस तरह से इसको आगे सिखाना है? मैं शुरुआत क्लास का या जो स्टूडेंट पहला आता है उनका मैं ब्रेथ चेक करता हूँ कि उनका Okay. ब्रेथ किस रिदम में है। तो अगर मैं उनको Okay. बोलता हूँ कि आराम से खड़े होकर सिर्फ सांस लेना है, तो मुझे तभी पता चल जाएगा कि ये किस रिदम में है और किस किस स्टेज में है लाइफ के। तो मैं उसको Okay. पहले तो मैं उसको जब देखता हूँ, आई ब्रिंग दैट पर्सन टू अ कंप्लीट a position where they are in a mood to dance. So breath मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी है, तो ये दोनों मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं शुरुआत वहां से करता हूँ कि एक ब्रेथ को कैसे कंट्रोल में लाना और अपनी रीढ़ की हड्डी को कैसे और इलोंगेट और पावरफुल बनाना, ताकि देयर इज अ सेइंग राइट कि ग्रो स्पाइन। मैंने वहां से वो लिया था कि बहुत लोग Okay. आजकल ना कि डांस से पर जिंदगी से बहुत डरे हुए हैं। बहुत बहुत शेम होता है उनको, बहुत बहुत अजीब तरीके की एंजाइटी चल रही है बहुत। और कहीं ना कहीं वो डर जो है वो स्पाइन को छोटा कर देता है। तो व्हेन यू से ग्रो स्पाइन, Okay. इट ऑल्सो मीन्स टू बिकम ब्रेव, टू बिकम करेजियस। सो मैं पहले तो सांस को एक तरीके से रिदम में लाता हूँ, उसको एक तरीके का करेज देता हूँ कि तुम्हारा बॉडी जो है वो कर सकता है इसको। वहां से लेकर मैं शुरू करता हूँ अपनी गाइडेड सीरीज को, वेयर आई मेक देम मूव, आई गिव देम सम एक्सरसाइजेस एंड देन दे स्टार्ट फ्लोइंग। और आखिर में ऐसा लगता है कि मतलब ये तो डांस के प्रो है। सो इट बिकम्स लाइक दैट। इनफैक्ट मैंने आपकी काफी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें ऑन वन सॉन्ग people are performing in their own way. They are just करेक्ट, expressing, you know. करेक्ट।
just they're Yes, taking their feelings out. So what was that? absolutely. Which video specifically? Anything? um Actually मैंने तो बहुत सारी देखी है आपकी, हाँ हाँ but हाँ। मतलब it's basically it's a combination. I think it's a workshop only, यस। workshop ही है. हम्म। तो ये अगर आपने वर्कशॉप का वीडियो देखा है तो बेसिकली वो एक फिनाले था जहां पर तो टेक्निकली क्या होता है कि जब भी मेरे साथ लोग बात करते हैं तो लोग ना पहले शुरुआत यही से करते हैं कि मुझे डांस नहीं आता Okay. या मैंने कभी डांस नहीं किया। क्या ये क्लास नॉन डांसर्स के लिए है? क्या ये क्लास जो है वो नॉन ट्रेन डांसर्स के लिए है? तो मैं बोलता हूँ कि हाँ ये बिगिनर्स के लिए है, नॉन ट्रेन डांसर्स के लिए है। और मैं इस कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि मुझे पता है कि वो जब आएंगे उनको लगेगा यार मैं नहीं हूँ यार बिगिनर, मुझे आता है डांस, यू नो। तो मुझे वो जो पर्सपेक्टिव तोड़ने का मजा क्या आता है मुझे वो तभी आता है, यू नो। तो जो Right. वीडियोस आपने देखा है वो उनका फिनाले है जब वो एक्चुअल में जब पूरी तरीके से खुल जाते हैं अपने एक्सप्रेशन से, अपने इमोशंस को लेकर, और तब जाके वो अनइनिबिटेड, अनकंट्रोल्ड और अनडिसाइडेड कैसे मूव करते हैं, तब जाके मैंने शायद कुछ कुछ ग्लिम्पसेस लिए होंगे जो एक इंसान अपने हिसाब से अपने ट्रांस में नाच रहा है कि मतलब यू नो दिस इज माय डांस, दिस इज माय टाइम एंड दिस इज माय स्पेस एंड आई एम एंजॉयिंग दैट ऑन माय ओन, यू नो। Right. या। So any other form also you do apart from contemporary? Yes, I have been trained in jazz. I've been trained in salsa. Oh. I've been trained in yes, I've been trained in hip hop, street forms. I was in New York for 6 years. मैंने वहाँ पर डांस की पूरी तरीके से पढ़ाई करी, जहाँ पर डांस हॉल, हील्स तरीके का डांस, सारा वेस्टर्न डांस जो भी है। इंडियन क्लासिकल अभी तक नहीं किया है, बट बॉलीवुड तो हमारे यहाँ हमेशा होता रहा है, तो वहाँ पर जो भी फोक और क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस आते हैं वो तो करता ही, जैसे कि भांगड़ा हो गया या फिर यू नो गिद्दा हो गया या फिर यू नो Right. दिस बेसिक लावनी एंड द बेसिक ठुमकास एंड द वो तो हमारे यहाँ होता ही रहता है। बट अदर देन दैट अमेरिका में मैंने 6 साल जब पढ़ाई करी थी तो जैज, बैले, कंटेम्प्रेरी, हिप हॉप, स्ट्रीट, मॉडर्न डांस, इन सब का पढ़ाई किया था मैंने वहां पर। तो Okay. And how हाँ, you find, do you find people here for jazz and these dances? बहुत एक्चुअली ये बहुत ट्रेंड में है आजकल, Okay. क्योंकि यूट्यूब यूट्यूब और इंस्टाग्राम और वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस इंडिया में है तो वहां से बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत लोग एक तरीके से एस्पायर करते हैं कि वो वैसा नाचे। जहाँ पर कैलिफोर्निया से वीडियोस यहाँ तक आते हैं, न्यूयॉर्क से यहाँ तक वीडियोस आते हैं, यूरोप से यहाँ से वीडियोस आते हैं, तो लोग देखकर उससे इंस्पायर होते हैं। तो डेफिनेटली बहुत लोग चाहते हैं कि वो सब करें, यू नो। एंड स्पेशली वो मुझे मेरे हिसाब से रिसर्च करने के बाद मुझे लगता है कि बहुत यंगस्टर्स जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है, यू नो। But there is another demography of people who also want to explore and try to find new things in dance, you know, not just jazz or street or hip hop. Yeah, as you mentioned YouTube, basically होता क्या है कि I believe लोग देख के सीखना जरूर चाहते हैं, but वो उसकी टेक्निक नहीं सीखना चाहते. Hmm. You know, and how important is technique? How important is technique? एक्चुअली मैंने टेक्निक से अपना वास्ता और नाता ही तोड़ दिया एक्चुअली। तोड़ तो दिया. मुझे और मैंने नहीं, सोचा but कि normally मैंने यार देखा है, YouTube देख के they just try to copy, but या simply some basics are required. What is your say अगर on आप that? एक अगर आप एक कोई एक ऐसा फॉर्म जिसका कोई एक तरीके का एक क्लासिकल कन्वेंशनल प्रोसेस बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल बैले या फॉर एग्जांपल जैज, आपने ऐसे फॉर्म्स पढ़ना चाहा या सीखना चाहा जिसके टेक्निक्स बने हुए हैं, और अगर आप उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो शायद वो फॉर्म वैसा नहीं दिखेगा जैसा वो एक्चुअली होना चाहिए, ना कि कुछ Right. और दिखेगा। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वेस्ट में जब हम बैले की बात करते हैं या जैज की बात करते हैं, वहां पर इन तरीके का डांस का मार्केट है, लोग ऐसा डांस देखना चाहते हैं।
यू नो। राइट। तो हालांकि यहाँ पर इंडिया में टेक्निक और जो जैज में या बैले में जो चाहिए वो टेक्निक, और लोग इतना शायद इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे क्योंकि वो टाइम जानते भी नहीं नहीं देना है। चाहते, और वी टाइम नहीं कैन से देना। टाइम नहीं दे। हाँ, आई मीन for the kind of intricacies that ballet has or jazz has or street has, जो वेस्ट में होता राइट। है, उतनी इंट्रिकेट तरीके से अभी तक इंडिया में उतना रिसर्च नहीं हुआ है डांस को लेकर। और जो ऑडियंस जो देख भी रहा है, चाहे वो जैज देख रहा है या बैले देख रहा है, वो सिर्फ एक डांस के तहत देख रहा है, ना कि एक फॉर्म के तहत या टेक्निक के तहत, यू नो। राइट। और राइट। रेगुलर ऑडियंस अगर एक रोजमर्रा की जिंदगी जो जाके दिल तो पागल है देखता है, कुछ कुछ होता है देखता है, उसको आप एक बैले परफॉर्मेंस दिखाओगे, वो बोलेगा हाँ यार नाच रहा है, कुछ नाच रहा है, पता नहीं, यू नो। वो हम्म। बट उसके जो अंदर के जो डिटेल्स है, उसमें शायद उसको इतना इंटरेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि वो जानता भी नहीं है वो डिटेल्स। राइट। या उसको एंजॉय करेगा या उसको देखेगा और बोलेगा कि यार मजा आ गया यार, कुछ अलग देखा मैंने, यू नो। राइट। और या फिर मैं ये कहूँ कि हम लोगों का इंटरेस्ट एक वो 30 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स पे आ हम्म। गया है, तो हम्म। उतना अगर हम कर लेते हैं या हमने कहीं वीडियो डाल दिया, ओ मतलब हमने सीख लिया। लाइक हाँ, बिल्कुल दे आर बिल्कुल मोर बिल्कुल। उनका मेन कंसंट्रेशन वही रहता है कि बस इतना सीख के हमें ये डालना है। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कितनी मेहनत, चाहे वो कोई भी बिल्कुल फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म बिल्कुल हो, उसको बिल्कुल सीखना, उसकी प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट तो है ही, बट अगेन मेरे हिसाब से उसका जो आउटपुट क्या है, अगेन जी। मैं उसको वैसे देखता हूँ कि क्या तुम अपने लिए कर रहे हो, कि तुमको कुछ कुछ यू नो हासिल करना है, यू वांट टू अचीव समथिंग एंड यू वांट टू फील अकम्प्लिश्ड, राइट? You can do that. Or do you want to perform somewhere, or you want to perform something extraordinary that audience comes and watches you, तालियां बजाए और मजे करे। बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है वो ऑब्सेशन के तहत लेके जाते हैं टेक्निक को लेकर, इतना ऑब्सेस हो जाते हैं, इतना इतना अपने आप को तोड़ लेते हैं, मरोड़ लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, यू नो डरते हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ill things that are happening because of that whole idea of technique and being pushed, you know. राइट। So I think टेक्निक को अगर आप बहुत सोच समझकर अच्छे से करें तो अच्छा है, बट अगर आप ऑब्सेस्ड हो जाएंगे उसको लेकर कि मतलब इसके अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब देन इट बिकम्स वेरी बैड फॉर द बॉडी। मतलब टू मच ऑफ समथिंग एंड टू लेस ऑफ समथिंग इज बैड, यू नो। तो राइट। एक बैलेंस कि हाँ मैं टेक्निक किया, मजे किए, आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील। ये मेरा थॉट प्रोसेस है बहुत साल के पढ़ाई और डांस करने के बाद, कि मुझे लगता है कि टेक्निक एक तरीके से मुझे ना मेरे डांस को बांध भी देता है और मुझे बांध भी दिया है। मैं हम्म। फ्रीली डांस नहीं कर सकता, मेरे दिमाग में हमेशा स्टेप्स ही चलते रहते हैं। तो हम्म। जब मैं स्टेप्स को हटा देता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे यार मैं क्या करूं, राइट। नो। राइट। अच्छा विशाल, एक चीज और, जैसे कि हम एक फॉर्म में होते हैं, लाइक माई करेक्ट इफ आई से कि मैं हिप हॉप जानती हूँ, बट करेक्ट अब मैं सीखना चाहती हूँ टटिंग या कुछ और डांस, तो करेक्ट। वी आर हम अपने फॉर्म से इतने जुड़े होते हैं कि हम दूसरे हम्म। फॉर्म में जाने में बहुत, जो 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 डांसर या कोरियोग्राफर तो उसको दूसरी फॉर्म सीखने में ज्यादा टाइम लगता है, रेदर हम्म। देन जो एक रॉ पर्सन है। व्हाट इज योर से करेक्ट। ऑन दैट? नहीं, हाँ करेक्ट, ये तो होगा ही क्योंकि हर एक फॉर्म जो होता है वो हम्म। एक तरीके का बॉडी बॉडी का मसल ग्रुप जो है उसको हम्म। ट्रेन करता है। अगर हम बैले करेंगे तो बैले में एक तरीके का ट्रेनिंग होता है जहां पर एक ही तरीके के मसल ग्रुप्स ट्रेन होते रहते हैं। और हम्म। जैसे ही आप बैले फॉर्म को ट्रेन करते हुए किसी और फॉर्म में आओगे, जैसे कि जैज हो गया या फिर स्ट्रीट हो गया जहां पर बहुत ही फ्रीडम चाहिए, बट हाँ। आपने एक तरीके से एक फॉर्म में इतना एक मसल ग्रुप को ट्रेन कर दिया, शायद वो मसल ग्रुप को उतना ट्रेन करने की जरूरत नहीं है शायद हिप हॉप में या स्ट्रीट में। तो राइट। आपको वो डिफरेंस तो दिखेगा ही, क्योंकि अगेन इट्स द बॉडी, कि बॉडी हम्म। एक ऐसी चीज है जो कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत लिमिटेड भी है, you know. राइट। So if you keep training in one and develop something in the body, it definitely becomes very difficult to do something else and try to work on different muscle groups because वो train नहीं हुआ है उस तरीके से। बट अगर करेक्ट। आप
आप कॉन्स्टेंटली उसको ट्रेन करते रहोगे तो आ जाएगा। जैसे कि हाथों में ना, मतलब मैंने बॉडी में इतना डांस कर लिया, जब आप टचिंग की बात करते हो सिर्फ उंगलियों पे आता है, तो मैंने उंगलियां कभी चलाई राइट, नहीं है, यू नो। राइट। तो ये सिर्फ करेक्ट। उंगलियों पे ध्यान होता है कि उंगलियों से क्या करना है, तो उसके लिए अपने मसल ग्रुप्स जो यहाँ के हैं उसको ट्रेन करने की जरूरत होती है, एंड देन देन द फॉर्म माइट कम इनटू योर बॉडी। इट डिपेंड्स अगेन हाउ वेल हैव यू ट्रेन्ड एंड टेक्निक कैसे फॉलो किया है, वो सब आता है। राइट। सो कभी विशाल ऐसा हुआ है परफॉर्म करते हुए कि आप हम्म। सडनली ब्लैंक हो गए, यू नो कभी ऐसा हुआ है? थैंकफुली, यू नो व्हाट, परफॉर्मेंस करते वक्त मैं कभी ब्लैंक नहीं हुआ हूँ। टच बट वुड। परफॉर्मेंस के पहले मैं हमेशा ब्लैंक रहता हूँ कि यार हाँ। क्या होगा कि अगर मैं वहां पर जाकर ब्लैंक हो जाऊं, और अभी भी हम्म। मैं ब्लैंक हूँ। बट जैसे ही स्टेज पे गया हूँ, आई डोंट नो, हम्म। फ्रॉम समवेयर इट ऑल कम्स टू मी, आई डोंट नो। राइट। बट उससे पहले बहुत डर लगता है कि यार सब मैं भूल गया हूँ, क्या करना है मुझे नहीं पता, यू नो। राइट। शायद मैं वहां पर जाकर कुछ भी करूँ क्या, ऐसे मुझे लगता है। But the moment I go there, also it depends on how much have I practiced, राइट। before the performance. It depends on that. But thank God, thankfully, till today, I have not blanked out on stage. टच वुड। That's it. That's it. Yeah. यस। एंड नहीं, डेफिनेटली वो तो डेफिनेटली कई बार जैसे लाइक आई ऑल्सो लाइक समटाइम्स बोलते बोलते मैं भी नॉर्मली प्रैक्टिस में इतना नहीं होता, बट समटाइम्स कैमरा देख के और समथिंग कुछ ऐसा देख के गेट जस्ट ब्लैंक। Correct. Correct. हाँ हाँ हाँ, हो जाता है, हो जाता सो है, absolutely हो अगर जाता कोई ब्लैंक हो जाए तो एक्सप्रेशंस कितना मैटर करेंगे? अगर सिर्फ है। एक्सप्रेशन बहुत मैटर करेंगे, और पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं कुछ भूला नहीं या मैं ब्लैंक नहीं हूँ, एंड दैट्स अ बिग चैलेंज समटाइम्स, बिकॉज राइट। उसका भी एक अलग तरीके का ट्रेनिंग होता है कि जब अगर मान लो आप ब्लैंक हो जाओ, तो उसका उस वक्त क्या करना है वो भी एक तरीके का ट्रेनिंग है, वो भी एक तरीके का माइंडसेट है कि आप उसको कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो, राइट। इट इज वेरी नॉर्मल। बड़े से बड़े लोग, आई एम श्योर दिग्गज से दिग्गज लोग ब्लैंक हो चुके होंगे स्टेज पर। इट्स नॉट अ समथिंग लाइक अ अननोन फिनोमिना, बट हाउ टू कम आउट ऑफ इट, एंड आई थिंक एवरीबडी हैज देयर वेज ऑफ हाउ टू कम आउट ऑफ इट। कुछ लोग शायद डर जाते हैं, कुछ लोग कॉन्फिडेंटली खड़े हो जाते हैं, बट अगेन इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग कि आप उसको कैसे ट्रेन करोगे जब आप ब्लैंक होगे तो। राइट। या करेक्ट। सो बीइंग अ डांसर, आपको अपनी बॉडी को भी फिट रखना पड़ता होगा डेफिनेटली टू परफॉर्म। बिल्कुल सो बिल्कुल। कितनी रिहर्सल्स या कितनी एक्सरसाइज दिन में करते हैं? व्हाट यू डू फॉर नहीं, दैट? जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं ना ये टेक्निक और ये जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल आइडियाज है डांसर को लेकर, कि डांसर की बॉडी ऐसी होनी चाहिए, डांसर को 1 2 3 4 5 6 7 पे डांस करना है, या डांस ऐसा होना चाहिए, उस चंगुल से मैं निकल के बाहर आ चुका हूँ। ओके। तो मैं अभी एक डांसर को ऐसा नहीं देखता कि उसकी बॉडी ऐसे फिट होनी चाहिए। हाँ, डेफिनेटली एक इंसान को अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है, हेल्थ जी। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, कि आपका जो बॉडी वेट क्या है, आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, वो सब ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि डांस करने के लिए आपको 6 पैक एब्स बनाने पड़ेंगे, आपको जीरो 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 फिगर बनाना पड़ेगा, या फिर पतले होने पड़ेंगे, आपको रोज जिम जाना पड़ेगा। नहीं, आप अच्छा खाओ, ठीक से खाओ, आपकी बॉडी ठीक रखो, फिट रखो, मतलब फिट मतलब मोस्टली आई एम टॉकिंग इनसाइड। हम लोग अपना राइट। इनसाइड भूल जाते हैं, हम अपना सिर्फ आउटसाइड पे ध्यान देते हैं। तो इनसाइड जब हम लोग भूल जाते हैं, तो आप कितना भी आउटसाइड काम कर लो, अ, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं इतने सारे डांसर्स को जानता हूँ, रशिया से या फिर अमेरिका से, जो बैले करते हैं, जो अपने आप को बाहर से जब देखते हैं, आप उसको इतना फिट लगते हैं कि 6 पैक एब्स और ये वो, बट अंदर से उन्होंने वैसा बना के रखा है कि पूरा खोखला है। दे डोंट ईट वेल, दे डोंट कीप देमसेल्व्स फिट इन अ वे फ्रॉम इनसाइड, कि जो अपने बॉडी के राइट। इंटेक्स क्या है। तो दैट मैटर्स अ लॉट फॉर मी। आई थिंक fit for me is that, I mean, if you
हैव अ गुड करेक्ट। बॉडी परसेंटेज, अपने हाइट के हिसाब से आप कितना वेट रखते हो अपनी बॉडी में। करेक्ट। बेशक आपके पास कट नहीं हो या वो पूरा सिक्स पैक दिखाने लायक कुछ है नहीं, बट अगर आप एक एक हेल्थ कंडीशन में आप ठीक से अपने आप को Stamina मेंटेन किया is है। more important. Breathing exercises are more important. Absolutely, absolutely. And but this stamina is only again comes into picture if you want to become a performer. You Hmm. know, अगर आपको स्टेज पे डांस करना है 3 घंटे तक, Right. तब आप स्टैमिना पे काम कर सकते हो यार। बट आपको अगर अपने कमरे में डांस करना है अकेले, या फिर Hmm. एक पार्टी में डांस करना है, आप डांस कर सकते हो, बट स्टैमिना उसके लिए जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में Right. आपको स्टैमिना बढ़ाने की जरूरत है, बट एज अ परफॉर्मर इफ यू आर थिंकिंग अ डांस परफॉर्मर जो Right. स्टेज पे जाना चाहता है, तब जाके स्टैमिना वामिना वो सब जो इंट्रिकेट टेक्निकल डिटेल्स है वो आ जाते हैं। Right. बट एक नॉर्मल इंसान जो अगर उसको डांस करना है, जैसे एंजॉय करना है, तो फिट रहकर भी एक एक डिसेंट बॉडी रख के भी बिना कोई स्टैमिना वो नाच सकता है, हैव अ गुड टाइम। How important is warm up before dance? वार्म अप, या वार्म अप इज वेरी एक्चुअली मैं वार्म अप करना भी छोड़ दिया मैंने क्लास में। मैं बोल मैं आपने सारी बाउंड्रीज तोड़ के एक अलग हाँ डेफिनेशन क्रिएट की है। बिल्कुल। मैं अभी भी याद है मुझे कि जैसे स्टूडियो के अंदर हम लोग घुसते हैं तो पहले मुझे पता है कि हम लोग सिर्फ ये शोल्डर कर लिया और थोड़ा सा ये कर लिया, तो स्ट्रेचिंग कर लिया। तो मैंने एक्चुअली वो वार्म अप करवाना भी छोड़ दिया। ओके। इस वजह से भी कि मेरा जो डांस क्लास है वो इतना एग्जर्शन नहीं देता किसी को। मैं ओके। इसलिए मेरे क्लासेस को बोलता हूँ कि इट्स नॉट फिजिकली एग्जर्टिंग, बट इट इज मेंटली परस्पायरिंग। मतलब आप फिजिकली स्वेट नहीं करोगे, बट आप मेंटली स्वेट करोगे, तो आपके मेंटल पे ज्यादा काम होगा ना कि फिजिकल पे। इसलिए मैंने वार्म अप, वो कन्वेंशनल वार्म अप का जो फॉर्मेट है वो तोड़ दिया है। बट अगर आप एक टेक्निक या एक्सट्रीम फॉर्म सीख रहे हो, या फिर एक कोई एक क्लासिकल फॉर्म सीख रहे हो जिसमें बहुत रेपिटेशन की जरूरत है, बहुत एक तरीके से अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल पर ट्रेन करने की जरूरत है, बहुत कूदना होगा, बहुत नीचे गिरना होगा, अगर वो सब करने के लिए आपको क्लास में जाना है तो डेफिनेटली वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है, very very important, because otherwise your body might get injured, and it might also break. So it's very important to have a good warm up before having a class which is very exerting to the body. ओके। And how important is a flooring? Because, Oh, this normally, is a very good question. Yeah, this is a very good question actually। मैं भी ये सवाल बहुत पूछता हूँ। जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था तो वहाँ के फ्लोरिंग्स जो थे, वहाँ के फ्लोरिंग्स मार्ली के होते थे, मार्ली के फ्लोरिंग। ओके। और वो डिजाइन ऐसे होते हैं जहां पर एक बहुत सुंदर सा फोम होता है कि आप उसके ऊपर कितना भी कूदोगे तो आपका प्रेशर नी पे या बैक पे नहीं आता, आपका इतना राइट। सॉफ्ट रहता है। जब मैं यहाँ पर आया मैंने देखा कि बहुत लोग कंक्रीट के ऊपर डांस करते हैं। हमने वुडन फ्लोर से स्टार्ट किया था, वुडन फ्लोर पे भी डांस करते हैं। और I think flooring is very important, very very important, especially if somebody is pursuing professional dance और डांस ट्रेनिंग में ध्यान दे रहा है, क्योंकि डांस ट्रेनिंग या प्रोफेशनल डांस एक ऐसा चीज है जहां पर आप बहुत रिपीट करते हो चीजों को, राइट। गिरना, उठना, कूदना, जंप्स, और बहुत रेपिटेशन पे काम होता है। तो बहुत रेपिटेशन पे जब काम होता है तो आपके बॉडी पे बहुत सारा एक्सर्शन, बहुत सारा मार पड़ता है। तो उस करेक्ट। मार को कम करने के लिए आपको फ्लोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक मैं जितने भी डांस स्टूडियोज में पढ़ाने जाता हूँ मैं सबको वही बोलता हूँ कि फ्लोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पीपल कम राइट। देयर and they fall, they stand up, they again fall. So it's very, very important. Not only falling, in fact, Vishal, I have seen जो ये जिम में ये जो Yeah, क्लासेस होती हैं, yeah, जुम्बा, and yeah, other forms of fitness classes, आप yeah. जब जंप करते हो या क्रम्पिंग करते हो या कुछ भी करते हो, नीज पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड Correct, नॉर्मली यहाँ पे ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता, मैक्सिमम correct, प्लेसेस पे
they करेक्ट don't bother. अगर टाइल है तो कोई बात नहीं, it's okay. करेक्ट करेक्ट तो I think at least wooden तो हो, थोड़ा तो करेक्ट difference हो, you know. करेक्ट actually, lovely. It was it was a really good question. But I also want to add that dance, प्रोफेशनल डांस या डांस ट्रेनिंग जो होता है, वो एक ऐसा चीज है कि ऑलरेडी आपका बॉडी जो है वो रिपीटिशन में जा रहा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप अपने बॉडी को यूज कर रहे हो, तो डैमेज होना लाजमी है। आप उससे मतलब दूर नहीं जा सकते, बच नहीं सकते Yes, आप, यू नो। yes. बट फ्लोरिंग एक एक डेफिनेटली एक चीज है जो आप ऐड कर सकते हो अपने प्रोटेक्शन के लिए, यू नो। इंजरी तो होगा ही, मतलब आपके बॉडी को डैमेज होगा ही, क्योंकि आप अपने बॉडी को बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पर लेके जा रहे हो, यू नो। तो दर्द, पेन वो तो होगा ही, बट आप उस पेन को या उस बॉडी के ट्रॉमा को कितने हद तक कम कर सकते हो। कम तो कर सकते हैं. flooring definitely is a very important aspect Important. for a dancer. Yeah. How well is the floor? And how about mood? Sorry? Mood reflect करता है, mood reflect करता है, you know कई बार होता है ना कि हम भरे हुए हैं and हाँ किसी से कुछ बात हो गई है, हमारा वर्कशॉप है, so mood भी reflect करता है डांस में. हाँ, मूड तो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करता है। आई मीन, आई डोंट अंडरस्टैंड स्टिल इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, बट मूड तो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करता है। आई मीन, What I mean बट आई स्टिल to वुड ask is, if something या is going in your head, something इन माय एज इन is मी going और द स्टूडेंट in you, like. इन मी, ओके, इन So मी। कितना रिफ्लेक्ट करता है काम पे, या you don't you just ignore that? Oh, yes, I understood your question. नहीं, एक्चुअली ना मैंने वो भी तोड़ दिया अभी, Okay. क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब मैं क्लास के अंदर जाता हूँ ना, तो मैं एज अ टीचर, मैं अपने आप को टीचर कहना भी बंद कर दिया है। मैं अपने आप को टीचर नहीं बोलता हूँ अभी। आई कॉल माई Okay. सेल्फ अ गाइड, Okay. मूवमेंट गाइड, राइट। Right. तो मैंने ये सोचा था कि जब मैं क्लास के अंदर जाता हूँ, तो मैं पहले बोलता था कि स्टूडेंट्स को या अपने आप को, कि जो भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो हो रहा है, तकलीफें हो रही है, सब कुछ है, वो सब बाहर रख के आओ, या अंदर कुछ मत लेके आओ। या जो मेरा जो चल रहा है अभी फिलहाल, जो मेरा पर्सनल चल रहा है, जो भी चल रहा है, उबर वाले ने 10 बार कैंसिल कर दिया, फिर भी मैं पहुंचा हूं वहां पर उस फ्रस्ट्रेशन में, यू नो। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, क्लास के अंदर आते आते मुझे वो सब कुछ भूलना चाहिए। बट मैंने उस चीज को थोड़ा सा तोड़ दिया है। मैंने कहा नहीं, आप जब इमोशंस पे काम करते हो, आप इमोशंस को लेकर मूवमेंट पे काम करते हो, मैं चाहता हूं कि आप अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है वो मुझे दिखाए। आप Okay. प्रिटेंशियस होके आप जैसे ही बोलेंगे कि नहीं 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 मैं ये सब भूल के अंदर जाऊंगी, मैं तुरंत प्रिटेंशियस हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, यू नो। आई बिकम प्रिटेंशियस, आई बिकम फेक, आई विल बिकम somebody who I am not, and I will try to force myself to feel something different when I know something is really going wrong. But I would rather want to identify it. I want to approach it. I want to come there and face it through movement, and then see if I found a solution or release or some kind of a let out, you know, and an answer, or maybe not. But at least I'm not being fake. I'm not trying to put on this mask and come inside the class. नहीं नहीं, आप सब कुछ भूलना चाहिए। अरे क्यों भूलना चाहिए भाई? नहीं भूलना चाहिए। Right. डांस अगर आप आर्ट फॉर्म समझते हो, आर्ट का मतलब ही है कि एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। आप खूब एक्सप्रेस करो, भरपूर एक्सप्रेस करो। तो आप ऐसे क्यों अपने आप को सब कुछ छोड़ छाड़ के क्लास के अंदर कुछ और एक मास्क पहन के आओगे? आई डोंट थिंक इट्स राइट। Okay. So I bring, so जब मैं क्लास में जाता हूँ, to answer your question, I go with the mood that I am in, कि मतलब आज मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्से में चला जाता हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है तो मैं रो के ही क्लास पढ़ाऊंगा, नो। या फिर मैं एक्साइटेड तो एक्साइट होकर ही क्लास Emotion in पढ़ाऊंगा। motion. Emotion in motion. इमोशन इन मोशन। तो आप इमोशन को आप साइड में रख ही नहीं सकते हो, यू नो। आप जो Right. फील कर रहे हो, आप जो एक्सप्रेस करते हो, उसको लेके चलना पड़ेगा आपको, यू नो। Correct. तभी जाकर आप ट्रू होंगे अपने सेल्फ को, अपने इमोशन को, अपने एक्सप्रेशन को कंप्लीटली।
is what I feel. This is my thought. Again, people might differ. People have Yeah. different thoughts, and Yeah. आजकल, but yeah. So as we are talking about emotions, so how do you keep yourself strong in low moments? Ah, हाँ, very good question again. मैंने कभी सोचा नहीं. How do I keep myself strong? Uh, I just accept things the way they are. I am Okay. not expecting too much in life. Mm. मैं ना कल क्या होगा उसका सोचता हूँ, ना कल क्या हुआ उसके बारे में सोचता हूँ. I just think that now I'm having this beautiful chat with this beautiful person here right in front of me. Lovely person, lovely. Thank you. And I'm just enjoying the moment. I think I accept the moment at this very moment, and I would like to think about it that way rather than. Mhm. I think that's what keeps me going. That's what keeps me strong. मैं ये नहीं सोचता हूँ कि 10 दिन बाद क्या होने वाला है या 20 दिन बाद क्या होने वाला है. उसको लेकर मैं लो क्यों हूँगा अभी फिलहाल. I'm going to ruin this Right. moment of my, you know. Right. तो इस मोमेंट ने अगर मुझे कुछ लो फील कराया, इस मोमेंट ने मुझे कुछ एक्साइटिंग फील कराया, तो मैं उसी मोमेंट को फील करूंगा, ना कि Right. मैं कुछ जो नहीं हुआ या जो हो चुका है उसको लेकर लो फील करूंगा अभी फिलहाल. Right. Correct. That's आई डोंट नो इफ really दैट मेक्स great. सेंस, बट बहुत So बहुत विशाल कोई फिलोसॉफिकल हो रहा है. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. एंड लोग बोलेंगे मुझे आप ये कि ये बताइए. डांसर है कि बाबा आ गया. नो नो नॉट एट ऑल, बिकॉज काफी सारी चीजों को कई बार डिफरेंट करके भी देखना चाहिए. जो हम्म. उसकी बाउंड्रीज हैं उनसे निकल के भी कुछ डिफरेंट जब होता है तो इट ऑल्सो क्रिएट मैजिक. आई थिंक व्हाट यू करेक्ट. आर डूइंग. I सो hope so. I would love for you to come and see it for yourself and test it for yourself and see how it feels. राइट. सो आप जो वर्कशॉप लेते हैं वो कितने टाइम की होती हैं और कहाँ कहाँ आप आने वाले हैं? प्लीज टेल अस एंड टू द व्यूअर्स, दे वुड लव टू जॉइन. Definitely. I would love for people to join and do this. अभी फिलहाल गुड़गांव में मेरा वर्कशॉप हो रहा है 21 और 22 को. ओके. एंड देन मैं यहाँ से जा रहा हूँ गोवा. गोवा में 28, 28, 29. ओके. और उसके बाद मैं फरवरी में पूरा मैं बैंगलोर में हूँ. बैंगलोर में मेरा बहुत जगह पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर वर्कशॉप हो रहे हैं. ओके. और उसके बाद मार्च को मैं मुंबई में हूँ और अप्रैल को मैं वापस दिल्ली आ रहा हूँ. ओह वाओ, दैट्स ग्रेट. Yes, सो वी कैन जॉइन yes, ट्वाइस. absolutely, absolutely, absolutely. राइट. अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस या ऐसा परफॉर्मेंस करते हुए कोई इंसिडेंट जो आपको आज तक याद हो? ऐसा कोई परफॉर्मेंस, ऐसा कोई इंसिडेंट आज तक याद है मेरे को, आज तक याद है. एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ. तो मैं पहली बार इंडिया से बाहर परफॉर्म करने गया था. एक बॉलीवुड शो था. आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द शो एनी मोर. बहुत साल पुराना था, 2009 की बात है ये. और हम लोग गए थे यूरोप टूर करने के लिए. ओके. तो हम लोग पोर्तुगल में थे. एंड पोर्तुगल में वी वर परफॉर्मिंग इन, आई थिंक कैंपा पिक्विनो करके कोई जगह है जो बुल फाइटिंग अरीना है. ओह ओके. तो बुल फाइटिंग अरीना में वहां पर परफॉर्मेंस होने वाला था. और हमारा परफॉर्मेंस 2.5 घंटे का या 3 घंटे का परफॉर्मेंस था, पूरा डांस शो. ओके. आई थिंक इट वाज ओके. क्वींस ऑफ बॉलीवुड या ऐसा कुछ था, वो याद नहीं आ रहा मुझे अभी फिलहाल. तो हम बहुत एक्साइटेड थे. और हमारे ऑर्गेनाइजर ने बोला था कि ये बुल फाइटिंग अरीना है और आपका जो स्टेज है वो बीच में लगेगा और ऑडियंस जो है वो सर्कल में बैठेगी, क्योंकि वो बुल फाइटिंग अरीना वैसे बना हुआ है पूरा वो. तो ओके. कन्वेंशनल स्टेज के हिसाब से नहीं था कि मतलब एक स्टेज है और उसके सामने ऑडियंस है. तो ये एक तरीके का अलग सर्कुलर स्टेज था. और सबसे बेहतरीन बात ये थी कि हम लोग, और बहुत ठंड थी, नवंबर दिसंबर का टाइम था, बहुत ठंड थी वहां पर. ओके. तो वहां पर हम लोग जल्दी पहुंचे थे, रिहर्सल कर लिया, टेक्निकल कर लिए. करने के बाद बहुत भूख लग रही थी. और एज यू नो वी इंडियन वी लव दाल चावल मिल जाए, कहीं राजमा चावल कहीं मिल जाए. राइट. बट वी वर इन अ बुल फाइटिंग अरीना. एंड हम जब नीचे गए थे, वो कैंटीन एक ऐसा कैंटीन था जहां पर उस कैंटीन में ही आपको खाना मिलेगा, जो भी मिलेगा वो वही मिलेगा. और वो खाना जो बना था वो सिर्फ बुल फाइटर्स के लिए बना था.
और Okay. जो बुल फाइटर्स जो खाना खाते हैं वैसा खाना था। तो वहां पर हर किस्म के प्राणी, हर किस्म के जंतु, वह उनके सारा पूरा जो लगा हुआ था ट्रे में। और पीछे पानी के बजाय वाइन वाइन का जो टैंक है, वो जो भी छोटा सा बकेट है, वो रखा था। Okay. तो और हम इंडिया से पहली बार बाहर गए, और हमें तो यार दारू मिल रही है फ्री में, ऐसे मिल रहा है क्या? ऐसे मतलब टैप से निकालो और पी लो, टैप से निकालो और पी लो। तो हमने क्या किया कि जोश में आकर हमने कहा यार शो को 3 घंटे है, चलो देखते हैं। और हमने क्या किया, वाइन आप कितना भी ले सकते हो, ऑन द हाउस था वो। तो हमने वाइन Okay. ऐसे पानी की तरह पीना शुरू कर दिया लेकर, और जो भी खाना था वो खाना शुरू कर दिया। Hmm. And I still remember that after a while it was so tipsy, it was so tipsy, it was so tipsy. मुझे अभी भी याद है कि एक वो शो में एक समरसॉल्ट करके मुझे ऑडियंस के पास जाना था। मैं उस समरसॉल्ट में ऐसे गिरा हूं और मेरा दांत टूट गया। और दांत टूट के पता नहीं कैसे वापस आया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी, और वो एक यादगार परफॉर्मेंस था मेरे लिए, बिकॉज इट वॉज सो डिफरेंट कि Right. हमको ऐसा लग रहा था कि हम लोग बुल फाइटिंग ही करने जा रहे हैं, अभी डांस नहीं करने जा रहे। तो That was really तो nice. वैसा था। या तो बुल फाइटर की तरह हमारा दांत भी टूट गया था, मेरा स्पेशली। और तो ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा वो। विशाल, टाइम टू रैप अप बिकॉज हमें पता ही नहीं चला, टाइम काफी हो गया। एंड बात करते करते डेफिनेटली इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टॉक, और बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारी चीजें और बाउंड्रीज तोड़ के जो आप जिस तरह से वर्कशॉप कर रहे हैं, इट इज रियली अमेजिंग, रियली ग्रेट वर्क यू आर डूइंग। एंड थैंक यू स्पेशली सो ऑन मच। द जो जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं जो डांस नहीं कर पाते हैं, एंड दे आर able to do that, is really wonderful. या So really great. So one advice you would like to give to a person who would like to take dance as a career? डांस एज अ करियर मत लो यार, पैसे नहीं है उसमें। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो मैं बोल रहा हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, देर इज नो मनी लाइक हाउ यू हैव एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, और अ डांस, और सॉरी, or any reputed position like a HR or a IT professional or whatever, you know but अगर आपको फिर भी ट्राई करना है, कोशिश करना है अपने लिए, then go for it. It's a very difficult journey, but if you have the backup, if you have the push, go for it, just go for it, but always believe. And the most important thing is to have patience. If you don't believe in what you're doing, and if you don't have patience, then there is no point in doing what you're doing, whether आप प्रोफेशनल अर्न कर रहे हो या हॉबी के लिए कर रहे हो, उसमें कोई ये नहीं है। सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिलीफ एंड पेशेंस। इफ यू हैव बोथ, देन आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर आज के डेट में देखा जाए तो पैसा भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। So I think don't just leave your work and education and say नहीं मैं पूरा डांस के, नहीं ऐसा नहीं होता। आप प्लीज साइड में कोई जॉब करिए, आप साइड में कोई मतलब ऐसा कुछ फाइनेंशियली अपने आप को केपेबल बनाइए, ताकि आप अपने डांस को भी गैस दे सकते हो, आप पुश दे सकते हो। क्योंकि डांस अकेले से नहीं होगा, नहीं होगा। इंडिया में तो डेफिनेटली वेरी इम्पॉसिबल, अनलेस एंड यू बिकम अ celebrity शादी choreographer or get into a reality TV. But there are Or a so nato many people nato who choreographer. Nato nato exactly choreographer. absolutely. Oh, that is really Absolutely. amazing. That was really amazing. And Yes, dance is yes, really amazing in that. absolutely, So absolutely. It's beautiful. So yeah, that's what I say, that आप प्लीज बिलीव रखो, पेशेंस रखो, और थोड़ा सा साइड में कोई काम ढूंढ लो। मम्मी पापा के पैसे पे मत जियो, इंडिपेंडेंट बनो, इंडिविजुअल बनो। अगर क्योंकि आपको प्रोफेशनल बनना है, तो आपको इंडिपेंडेंस और आप कैसे अकेले जी सकते हो, अकेले पैसे बना सकते हो, वो भी देखना बहुत जरूरी है। तब जाके आपको लगेगा कि right, हाँ यार, मैं डांस से भी पैसे कमा सकता हूँ, right, या पैसे right. कमाने की मेरे को तरकीबें पता है। That's very very important, very very important. Right. It's great talking to you, Vishal. Thank you so much for being on our show. And it's really nice. Wonderful talking to you. Thank you, So Lovely. I time would to love to wrap meet up. you.
Yes. Yeah, If you are there definitely. in And Gurgaon, please come and do my workshop, 21st, 22nd. I'll yes, send you the details. of, Okay? of course. Thank you Yeah. so much for giving your precious time. It's really great to talk to you. And all the viewers, please follow him on his ID and follow me and stay tuned for all the new updates and keep watching the Very Lovely Show. Thank you, Vishal. Thank you so much. Stay Thank safe, you so much. stay Thank you healthy. so much. Take care. Yeah. Bye-bye. Appreciate it. Bye. Take care. Bye Bye. bye. Good night. Bye. Bye. Good night.